Evaluate the impact of guild on the growth of trade and commerce in ancient India. Discuss the role in establishing commercial network, ensuring fair practices and economic growth in early India. So whenever we talk about guilds, you should know the sources which mentions about guild. You should know about the Jatakas. You should know about Mahavastu. So these are the topics. Okay. So according to Dr. D.P. Agarwal, guilds are the unique and multifaceted organization carrying out functions of trade union, court of justice, technical education, etc. So the functions has been described. Source यहाँ पे mention नहीं किया गया है. Impact of guild, तो foreign trade के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे Jatkas आ गया. Jatkas is a very good source. Jatkas mentioned that there were around 18 categories of guilds, but mention सिर्फ 4 के नाम करता है. That information can be shared. And even Mahavastu talks about the guilds of the area of Kapilavastu. So वो information यहाँ पे provide किया हुआ है. ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं. स्किल डेवलपमेंट, एवरीवेयर दे हैव गिवन एग्जांपल. रोल ऑफ गिल्ड इन कमर्शियल नेटवर्क. ओके, हियर इन द एग्जांपल ऑफ थापलियाल. थापलियाल इज अ फेमस हिस्टोरियन हु हैज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट नासिक एरिया स्पेसिफिकली, कि हाउ द नासिक एरिया वाज बीइंग रन इकोनॉमिकली एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ गिल्ड्स इन दैट पार्ट. Guilds were of 2 categories specifically, trade organization as well as the merchant organization. Then maintaining fair practices, economic growth, etc. So हर चीज़ में बस आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, है ना. ये वाला क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है, बट अगर आपके पास इंस्क्रिप्शंस नहीं, लाइक 2 very famous inscriptions are there. Nasik inscription, we have the Mathura inscription. These 2 inscriptions provide a lot of information about the guilds. ठीक है, तो वो information आपके पास होनी चाहिए. And guilds of ancient India are similar to the role played by the present day organization like FICCI is there, है ना, ASSOCHAM etc. So वो information बहुत अच्छा है. मतलब आपको ancient India में काफ़ी जगह ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप connect कर सकते हो with the direct part of the modern world itself. So वो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स से पहले से प्री मेडिटेटेड होना चाहिए. You should know it beforehand. It can't be कि आप पहले सोचो नहीं, बाद में एकदम से कुछ भी लिखने का. पहले से इनके दिमाग में था, then only they are able to connect. So in these types of questions, structure making is very easy. ठीक है. Hi, welcome to Prep Career IAS. Today I am here with a very important announcement. We are starting a brand new batch of History Optional Foundation. So if you are somebody who is looking for history as an optional, तो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री से फ़ायदा क्या होता है, कितने मार्क्स आते हैं, टॉपर्स कितने निकलते हैं. एंड देन इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, देन यू कैन जॉइन आवर इंस्टीट्यूट. चलिए बात करते हैं. सो द प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम 23rd of July. If you see from last few years, okay, हर साल टॉपर्स के 300 या उसके आसपास मार्क्स रहे हैं. In 2018 I was able to get 324 marks and with the period of time we have produced large number of toppers. अगर आप देखोगे 17 में 316, 18, 19, 20, 21 as well as 22. Every year people are getting around 300 or more than 300 marks. उसके आसपास आ ही जाता है. In fact, the topper of 2023, she also got more than 300 marks. So it's a specific optional where you get good marks. प्लस व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल. देखो आपके जीएस में बहुत हेल्प करता है. प्रीलिम्स में कभी 10 से 20 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 से लेकर 40 मार्क्स तक मैक्सिमम आपका यहाँ से हो सकता है डायरेक्टली. GS1 में 100 मार्क्स के आसपास, GS2 में 50 एंड GS3 में 25 मार्क्स. लैंड रिफॉर्म्स वगैरह वाले जितने भी टॉपिक्स हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के, वो सारे हिस्ट्री ऑप्शनल से ही डायरेक्टली लिंक्ड है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर ए स्ट्रेटेजिक ऑप्शनल जो थोड़ा सेफ भी रहे और जिसमें मार्क्स भी एक अच्छे लेवल तक आ जाए पढ़ाई करके, तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल. With respect to our classes, okay, if you see our methodology is a bit unique. What do we focus upon? First of all, we give some specific classes which are concept oriented. कि भाई आप बेसिक चीज़ें समझो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जैसे मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था. सो यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग इन द बिगिनिंग. तो वो हम सबसे स्टार्ट में आपको कुछ बेसिक NCERT क्लासेस देंगे. Then we'll go towards the core classes. These core classes are going to focus specifically on the topics of the history optional. And जो जितने भी topics हैं सब के ऊपर आपको अच्छे notes मिलेंगे. And side by side our classes are going to incorporate all the PYQs. जितने भी PYQs हैं सबको incorporate कर लेंगे. आपका एक अच्छा डेडिकेटेड रिवीजन टाइम मिलेगा शेड्यूल के साथ में. कंटिन्यूस असेसमेंट भी की जाती है कि हर 14 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट देना है. इफ़ यू आर एबल टू गेट गुड मार्क्स इन द टेस्ट, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका अच्छे मार्क्स UPSC में भी आ जाएंगे. बट फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर. एंड वो अच्छी हैबिट इनकलकेट करने के लिए हमने ये स्पेसिफिक प्रोसेस बनाया. एंड फाइनली होलिस्टिक मेंटरशिप, नॉट जस्ट फॉर ऑप्शनल, फॉर ऑल द पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज ऑल्सो. एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर, हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स, हाउ टू क्लियर मेन्स, हाउ टू गेट मैक्सिमम
maximum marks in the interview. All those things we focus on at Prep Career IAS. So once you are becoming part of this foundation course, it's not just about optional, it's also about your overall rank in the specific civil services itself. तो उन सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं. देन अगर क्वांटिटेटिवली बात करोगे तो लगभग 150 प्लस सेशंस हो जाते हैं, 90 प्लस हमारी कोर कंसेप्ट क्लासेस रहती हैं, 40 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हो जाते हैं क्लास के अंदर, एंड फाइनली जो आपको कुछ वैल्यू एडेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं टू मेक यू एट ईज विद द हिस्ट्री ऑप्शनल. क्यों? बिकॉज देखो कभी होता है कि प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन दे दिया आपको, ठीक है, साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट मैप की जो साइट्स वगैरह उनकी कंपाइलेशन दे, तो ऐसे करके जितना भी एनालिसिस चाहिए होता है इस ऑप्शनल के लिए उन सबको हमने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो दैट हूएवर जॉइन्स दिस उनको हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास शुरुआत से ही एज रहे, और एज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है. तो दिस इज़ अबाउट द क्वान्टिटेटिव. देन टेस्ट मिल जाते हैं आपको, 14-15 टेस्ट मिल जाते हैं ओवरऑल मिला के. देन वेबिनार्स होंगे मेरे साथ में, क्रिस्प हैंडआउट है, एंड मेंटरशिप सेशन तो साथ में चलते ही रहेंगे. इन 22 वी वर एबल टू गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, एंड दिस लेगेसी गोज अ लॉन्ग बैक. 2022 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 21 में इनफैक्ट द रैंक 1 शी वॉज फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज. सो इफ़ वी स्टडी वेल, इफ़ वी डेडिकेट आवर सेल्फ टू दिस ऑप्शनल कैन गिव यू वेरी गुड रिवॉर्ड. एंड हमारे साथ प्रिपेयर करोगे तो किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई माई सेल्फ बीन एन ऑफिसर, आई माई सेल्फ बीन एन एस्पिरेंट ऑफ स्टडिंग विद दिस ऑप्शनल. मैंने हर चीज़ देखी है, एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years टेल्स मी ओनली वन थिंग, दैट इफ़ यू आर स्ट्रेटेजिक, इफ़ यू आर मेथडोलॉजिकल, एंड इफ़ यू फोकस ऑन द राइट एरियाज, you can get very quick result, but yes, you have to be dedicated from your side. So if you are somebody with energy, somebody with dedication, become a part of this. 23rd जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आपको अच्छे तरीके से मेंटर करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड सिनर्जी बिटवीन अस, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू दिस, मार्कशीट वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यू कैन सी इवन माई मार्कशीट, यू कैन सी आई गॉट 324 marks here. You can call on these numbers. These are the numbers through which you can get connected to our counselors. और counselors के through जितने भी queries हैं with respect to this program, you can eventually solve them out. आप offline visit भी कर सकते हैं in ORN, उसका भी एड्रेस वगैरह आपको वो सेंड कर देंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट.